Good afternoon, class. Today I am going to start the topic Python, in which I'm going to explain you about the program related to the chapter Python fundamental, as I said in my class. So, as I was saying that time, that how we can display list or sets or tuples, they are same. The difference is that which bracket we are using and how we are just displaying those data type. So that I will tell you later. Before that, I am going to explain about the programs. So on in type C programming, the questions that are given, the first question is that write a program that display a joke but display the punchline when user presses enter key. It means it will display the statement that you are writing when user press enter key. Okay, so some program I am going to explain. Rest of the programs you will write by yourself. So the first program is actually I have made that program because we have very less time. So that is why I already made that programs, and I am going to show you that how it will run. So the first is as I said, the first program is that how you can use a joke. So you can write you can just see here that it is written print how many potatoes does it take to kill an Irish farmer. This is generally a punchline statement, and you want to print that statement that is given in your book. So you if you want, you can write any other statement that you want to write. So it is not compulsory that you write this line only. So you can write any line. So first you have to print the line, because they are saying that you have to display a joke, and display a joke means only the programmer will write the statement. So as I have written this one, now the value that you want from user is pressing enter key, because when user press enter key, then it will run. So that is why, as I said in my previous chapter, that if we want to take any value from user, then we can use input function. If we are using any variable, okay, just like if we are using a, then we can write a equal input, enter any number or any other character or any other data type or any other value. But just because here we have to press enter key, and pressing enter key is not a value that we store in any variable, that is why we are not writing this. We are writing this much only, input function, press enter. So when user press the enter key, then your system will take that value, take that signal, and complete the task. After that you will print none. Okay, so when you run that program, so one thing that you have to remember is either you can press F5 for shortcut key, or you can use run module. Okay, so whatever you want, either you press F5 or you press run, both the condition your program will going to execute. So I am just pressing F5. Every time you get this message, if you are just saving first time, then after that you get a screen where you can write the name. Otherwise you just your output screen will display. Now the comment is written as press enter. It means system is asking from user to press the enter key. When you press enter key, then it will print none. Okay, this is the simple program where you are not doing any calculation, any function that you are using, means function means formula you are using. It's a very simple question. Now a simple program. Now the second one is that if you want to the second question is write a program to read today's date, only del part from user, then display how many days are left in the current month. That program I made, but here we are using 2-3 functions just because we have to mention date and we have to calculate date.
तो टू फंक्शंस आर यूज्ड हियर. One is a split function that divides your values, and a map function which calculates the value. But just because map and split function I have not explained, so I am not going to show you, or if I am showing you just that how it will display, how it will run. So I am just giving the coding of that portion, that program. But first in my class I will explain this, and then you are able to understand. Here we have done only three things. One is we have taken three variable, date, month and year. If you want to write day, month and year, that you can write. Then we have to use map function, which just take the value and split and separate it. ठीक है. And the next is that input function that you already know. After that, split function that just change the values of the separate the values of the series. Now here we have 12 months, so we have to put 12 values, क्योंकि हर एक जो आपका मंथ है उसमें अलग अलग डेट्स होती हैं, मतलब अलग अलग डेज होते हैं. तो यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि दैट इन मंथ वी हैव 31 डेज टू 28, फिर 31, 30, जस्ट लाइक यू हैव टू मेंशन ऑल द मंथ्स. ठीक है. अब यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने आपको डिक्शनरी के बारे में बताया था. तो बेसिकली ये डिक्शनरी की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर आपका जो 1 है दैट इज की, एंड 31 इज द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी, एंड नेम ऑफ डिक्शनरी इज मन. आप चाहे तो मंथ लिख सकते हैं पूरा. देन 2, 28, 3, 31. तो जो कॉलन के फर्स्ट कॉलन से पहले का जो पार्ट है दैट इज द की फीचर, एंड 31 इज द वैल्यू फीचर. तो की वैल्यू आपका हो गया. और आप किसी भी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को अगर आप प्रिंट करते हैं तो उसे आपको उसके की के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़ता है. जैसे यहाँ पे आपने लिखा मंथ लार्ज ब्रैकेट में m, तो m आपका वो की है जिससे आप मंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपने ऊपर जो मंथ है उसके लिए आपने वेरिएबल m दिया हुआ है. माइनस डी मतलब जो भी डे आप लिखेंगे उसमें में वो माइनस कर देगा. लाइक अगर 31 डेज हैं किसी मंथ में और आपने डी में वैल्यू दिया है 11, तो मतलब वो 11 दिन को माइनस करके और फिर आपका जितने भी डेज लेफ्ट है वो प्रिंट कर देगा. ठीक है. ये सिंपल आपका कोडिंग है. जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको डेट मेंशन करना है, जहाँ पर आपको डेज मतलब पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है. तो लाइक अगर हमने दिया यहाँ पर 04, ये हमारा डे हो गया. फिर 09 ये मंथ हो गया. और इसमें आपको स्पेस का इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है. तो 09 एंड देन स्पेस में हमने दिया यहाँ पे 2005. ठीक है. एंटर. तो आप देखोगे कि आपने जो आपके जो डेज लेफ्ट हैं वो डेज आपके कितने हैं, 26 हैं. कैसे 26 हैं आप देखिए यहाँ पर जो आपका 9 मंथ था उस 9 मंथ में आपके पास 30 डेज हैं. और अगर हम 4 डेज की बात कर रहे हैं तो 4 डेज के बाद हमारे पास उस मंथ में 20 डेज और लेफ्ट रह गए हैं. तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है. नेक्स्ट ये 2 फंक्शन है जो मुझे आपको बताने हैं. ये 2 फंक्शंस के अलावा बाकी जो कोडिंग है वो आपका बहुत सिंपल है. जो नेक्स्ट आपका जो प्रोग्राम है दैट इज राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट. यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक सीरीज प्रिंट करना है जहाँ पर है 5, 10 और 9. आप देखोगे तो 5 के बाद 10 जो है वो आपका उसका डबल है, और फिर जो 9 है वो -1 है. तो यहाँ पर आपको अलग अलग भी आप प्रिंट कर सकते हो और एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो. हम दोनों ही तरीके आपको बता देते हैं. दिस इज क्वेश्चन 3. यहाँ पर आप देखिए जब आप सीरीज की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया a, और a के अंदर हमने 5 कर दिया क्योंकि इन्होंने 5 का ही दिया हुआ है वैल्यू. अदरवाइज आप यूजर से वैल्यू ले सकते हैं a का. फिर आपने s किया तो जो सेकेंड आपका वैल्यू है दैट इज a इंटू 2, मतलब जो भी आपने वैल्यू लिया है, क्योंकि हम 5 ले रहे हैं तो 5 इंटू 2 हो जाएगा. और x क्या है, s -1.
यानी आपने जो मल्टीप्लाई किया था 2 के बाद, तो जो वैल्यू आपको मिला उसमें से आपने -1 कर दिया। अब उसके बाद हमने इसको क्या किया, अलग अलग प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको अलग प्रिंट करने के बजाय आप डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। यानी अगर आप ऐसे प्रिंट करने के बजाय आपको डायरेक्ट प्रिंट करना है, यानी ये लाइन्स तो मैंने सिंपली इसलिए लिखी थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अदरवाइज आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपका वही सीरीज प्रिंट हो गया 5, 10, 9, और यहाँ पर भी आपका वही सीरीज प्रिंट हो गया 5, 10, 9। तो आप चाहें तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। अभी क्योंकि आपने इससे पहले प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो आप अगर अलग अलग लिखेंगे तो आपको देखने में थोड़ा सा उसी पैटर्न में दिखेगा तो अच्छा लगेगा। बाद में जब आप थोड़ा और अच्छी कॉम्प्लिकेटेड करने लगेंगे तो आप इसको चाहें तो आप एक लाइन में भी मेंशन कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको 4-5 लाइन्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन्होंने सिंपली बोला है कि आपको जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं वैल्यूज़ को आपको @ के साथ प्रिंट करना है। तो बहुत सिंपल है, आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा प्रिंट, मतलब आपको सीरीज यही रखनी है, सिर्फ उसे @ के साथ प्रिंट करना है। तो सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पर A। अब आपको @ चाहिए, तो @ एक स्पेशल कैरेक्टर है तो आपको उसे प्रिंट करना पड़ेगा डायरेक्टली। देन आपने क्या प्रिंट करना है, आपको S प्रिंट करना है, फिर कॉमा करके आपने @ लगा दिया और उसके बाद आपको लास्ट में X प्रिंट करना है, फिर आपने इसको बंद कर दिया। अब आप एंटर करोगे तो आपको देखिए फर्स्ट वाले का जो आंसर है आपका वो है 5, 10, 9। जो नेक्स्ट वाला है दैट इज़ 5, 10, 9। इसका मतलब ये है कि जो आपका 4th क्वेश्चन है उसमें आपको सेम कोडिंग रिपीट करनी है, बस प्रिंट फंक्शन चेंज कर देना है। ठीक है, यानी आपको अगर आप चाहें तो आप इस पूरी लाइन को हटाकर डायरेक्ट आप ये वाली लाइन प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। Now the next program is, write the program with maximum 3 lines of code that assigns first 5 multiples of a number to 5 variables and then print them। ठीक है, बेसिकली जब हम किसी भी वेरिएबल के लिए उसके मल्टीपल्स निकालते हैं तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि अभी हमने लूप पढ़ा ही नहीं है, इट मीन्स हम लूप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सिंपल फॉर्मूला या सिंपल एक पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर हम लूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी और तरह के स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करना है। कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो कह रहा है कि आपको वैल्यू यूज़र से लेनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू ले लिया यूज़र से। अब एक चीज़ आप यहाँ पर एक कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर इन्होंने एक लिमिटेशन दे दिया है कि आपको 3 लाइंस की कोडिंग करनी है। तो 3 लाइंस की कोडिंग की वजह से जो हमने मल्टीपल्स थे हमने उसको एक साथ यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे चाहें तो अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं। अलग अलग लाइन का मतलब हो गया कि आपने यहाँ पे लिखा A = X, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में B = X × 2। ठीक है, यहाँ पर आपने किया X × 1, फिर X × 2, फिर C = X × 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि इन्होंने कहा कि आपको शॉर्ट कोडिंग करना है तो हमने एक साथ उसको कर दिया। ये चीज़ आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये मल्टीपल असाइनमेंट की फैसिलिटी आपको देता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर A, B, C, D, E, क्योंकि 5 मल्टीपल्स हैं और A का वैल्यू हो गया X × 1, B का वैल्यू हो गया X × 2 और ऐसे ही E का वैल्यू हो गया X × 5, और फिर हमने वो 5 वेरिएबल्स प्रिंट कर दिए। सिंपल, नो कैलकुलेशन, नो फॉर्मूला। अब हम इसको जब प्रिंट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए अगर आप कोई भी नंबर प्रिंट करते हैं, मान लिया हमने 6 दे दिया तो आपको 6 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे।
अगर हमने 3 दिया तो 3 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो यूज़र से लेने में आपको यही फ़ायदा होता है कि जब आप कोई भी वैल्यू यूज़र से लेते हैं तो यूज़र अपने अकॉर्डिंग आंसर्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर हमने यही वैल्यू यहाँ पर यूज़र से लेने के बजाय अगर हमने डायरेक्ट x इक्वल 9 या x इक्वल समथिंग दे दिया होता तो हर बार हमें सेम वैल्यू मिलता, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हो कि इट इज रिटन राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट इट्स एरिया, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे कि हाँ आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपने रेडियस लेना है और एरिया निकालना है, तो ये बहुत सिंपल है। आपने क्या किया, आर लिया, आप चाहे तो रेडियस भी पूरा ले सकते हो, और उसमें आपने क्या इंट इनपुट एंटर रेडियस, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने लिखा पाई। अब क्योंकि पाई का वैल्यू तो आपका सिस्टम ऐसे अज्यूम नहीं कर सकता है, तो हम या तो 22/7 ले सकते हैं या फिर हम 3.14 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 3.14 इंटू आर और सिंपल एरिया हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको रेडियस एंटर करना है, तो मान लिया हमने रेडियस दे दिया 4, तो आपका जो वैल्यू आ गया वो हो गया 50.24, ठीक है। ये आपका एक सिंपल प्रोग्राम हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर आपको लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड आउटपुट एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पर बेसिकली ये वाला प्रोग्राम मैंने छोड़ा है क्योंकि बहुत सिंपल था कि इसमें जैसे अभी हमने रेडियस को एंटर किया है, आपको यहाँ पे क्या करना था, आपको यहाँ पर रेडियस के बजाय आपको 5 सब्जेक्ट एंटर करने हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या जो भी आपके 5 सब्जेक्ट 11th के हैं वो 5 सब्जेक्ट आप मेंशन करोगे। जैसे कि यहाँ पे मान लिया हम एक सिंपल सा आपको दिखाते हैं। जैसे आपको सबसे पहले इंग्लिश का मार्क्स लेना है, तो आपने लिया ENG इक्वल इंट इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ऐसे करके आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए आपने क्या लिखा, AVG ले लिया या एवरेज ही ले लिया पूरा, ठीक है, या AV ले लिया। और उसमें आपको क्या करना है, पहले सारे सब्जेक्ट का सम करना है और फिर 5 से मल्टीप्लाई। तो आपने जैसे लिखा यहाँ पर इंग्लिश प्लस आपने लिया हुआ है CS प्लस फिजिक्स, ऐसे करके आपने सारे सब्जेक्ट लिखे और ब्रैकेट करके, या सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट बनाना होगा, क्योंकि ब्रैकेट बनाने का मतलब है कि पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व हो जाएगी और फिर डिवीजन होगा सॉल्व। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने के बाद आपको 5 करना है, ठीक। तो आपका और फिर प्रिंट एवरेज AVG कर देंगे, तो आपका जो एवरेज है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट AV। तो आपका जो आंसर है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर 7 नहीं 8 नंबर, ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये भी। इसमें इन्होंने कहा है कि आपके पास में एक वैल्यू है जिसमें आपको हाइट लेनी है यूज़र से, और उस हाइट को आपको फीट और इंचेस में बदलना है। और इन्होंने उसके लिए मेज़रमेंट दिया हुआ है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। तो इसको हमें यूज़ करना है उसको। तो जैसे यहाँ पर आपका है कि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने हाइट ले लिया, और क्योंकि हाइट आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो आपने यहाँ पे लिख दिया एंटर हाइट इन सेंटीमीटर, ताकि यूज़र को पता हो कि वो जो भी वैल्यू दे रहा है वो सेंटीमीटर में दे रहा है। फिर आपको हाइट को सबसे पहले इंचेस में बदलना है। तो इंचेस के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो आपने पहले क्या किया, आपने आपकी हाइट को जो कि सेंटीमीटर थी उसे आपने इंचेस में बदल लिया पहले। अब आपके पास जो हाइट है वो आपके पास इंचेस में है। तो आपको क्या करना है, अब आपको प्रिंटिंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अलग से फॉर्मूला लिखने के बजाय मैंने डायरेक्ट आपका प्रिंटिंग कर दिया है, मतलब डायरेक्ट आपको फॉर्मूले को प्रिंट किया है, क्योंकि बहुत छोटा सा फॉर्मूला था।
तो वैसे तो जनरली आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सिर्फ फीट और इंचेस में करना है, बट हमने एक लाइन और ऐड की है ताकि आपको पता हो कि आपने कितने सेंटीमीटर दिया था और वो फीट और इंचेस में कैसे बदल गया है। तो आपको मालूम है कि अगर आपको उसमें फीट में बदलना है तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपको इंचेस में करना है तो जितने भी फीट हुए हैं उसके बाद, क्योंकि आप ऑलरेडी हाइट को इंचेस में बदल चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने हाइट जो लिया था वो सेंटीमीटर में था, लेकिन आपने 2.54 से डिवाइड करने की वजह से आपका जो हाइट है वो अब इंचेस में बदल चुका है, यानी अब आपके पास जो हाइट है वो इंचेस में है। तो अगर आपको उसे फुट में बदलना है तो आपको सिंपली उसे क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो आपने क्या किया, आपने हाइट को 12 से डिवाइड किया तो आपको किस में मिल गया, फीट में मिल गया। और अब जो बचा हुआ पोर्शन है, यानी जो भी आपने दिया हुआ है इंचेस में, उस इंचेस को जब उसने फुट में बदल दिया तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका इंचेस में बचेगा। तो उन्होंने क्या किया, इंचेस को देखिए परसेंट साइन, मैंने आपको बताया था कि परसेंट साइन रिमाइंडर के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप हाइट को 12 से डिवाइड करते हैं तो आपको देखिए जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर हमने हाइट जो दिया वो दिया 156 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपका जो 156 सेंटीमीटर है वो 156 सेंटीमीटर में आपको जब आप 12 से उसे डिवाइड करोगे तो आपका आ गया 5 फीट, और इंचेस कितना बचा, 1.416, ठीक है, यह हो गया आपका इंचेस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका वैल्यू है वो वैल्यू ये इंचेस में शो कर रहा है, ये लाइन क्योंकि हम इसको ऑलरेडी बदल चुके हैं तो अब जो आपका आ रहा है वो इंचेस में आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि जब हम वैल्यू देते हैं, यानी हमने दिया यहाँ पे 234 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमारा जो इंचेस आया वो 92 इंचेस आया। अब इस 92 इंचेस में हमारा जो वैल्यू है उसमें 7 फीट्स हो गए, और 8.125 ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंचेस हो गया, जो कि फीट के बाद आपके इंचेस में बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपका है ये प्रोग्राम हो गया जहाँ पर आप किसी भी पर्सन की हाइट को अगर आप सेंटीमीटर में देते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा, आपका इंचेस में और फीट में चेंज हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका कि आपको एक नंबर लेना है यूज़र से और उसका स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 प्रिंट करना है। मैंने आपको बताया था कि पावर के लिए हम डबल मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका है जहाँ पर आपको ट्राइंगल का एरिया प्रिंट करना है, उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद में आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लेने हैं, वही सेम चीज़ है। तो ये आपके ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप सिंपल कैलकुलेशन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे के जो प्रोग्राम है वो आपको खुद से करने हैं। किसी भी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ओके, दिस इज़ फॉर टुडे।